In teaching material, every teacher, they have uploaded their slides. Okay, so you can also download it from there. My slides must be there. I don't exactly remember, but I'll share it. Don't worry. Okay, so coming to blood and immunity. Black and blue. Pardon? Someone is saying something? So this you all know what is physiology. Normally I take the first class, but this time GIT was taught first because because of some technical reason. I'm taking the second class. So normally in the first class I say what is physiology. I teach students about physiology. But since you are already aware what is physiology, so I'll skip this slide. So physics means nature and logia means study. So physiology is the study of the nature, study of normal functioning of human body. That is physiology, and that you have been told many a times that what is physiology. The normal functioning of human body, and in order to understand the medicine, you need to understand physiology. Further subjects of the medicine जो आप MBBS में आगे पढ़ेंगे, वो subjects आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आपको physiology आपकी clear ना हो. फिजियोलॉजी आपको समझ में आएगी तभी बाकी सब्जेक्ट्स आपके समझ में आएंगे बिकॉज फिजियोलॉजी इज द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी और सारी ब्रांचेस जो है मेडिसिन की चाहे वो मेडिसिन इटसेल्फ हो या कोई भी आपके सब्जेक्ट हो मेडिसिन के एमबीबीएस में जो आपको पढ़ाए जाते हैं दे ऑल आर बेसिकली रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ओके नाउ कमिंग इनटू ब्रीफ about the history of physiology. So Hippocrates, who lived in 420 BC, he is considered the father of medicine and he is supposed to be the first physiologist. ठीक है, जब आप लोग MBBS complete कर लेंगे, तो there is an oath called Hippocratic oath. ठीक है, वो माना जाता है कि आप लोगों ने Hippocratic oath ले लिया MBBS के बाद, तब वो आपको डिग्री मिलती है. So Hippocrates was considered the first physiologist. Then John Fernald, he was the first person who coined or introduced the term physiology, that is meaning study of nature origin. In 1497, in the 15th century, later half of 15th century, you can say 16th century, John Fernald was a French physician. He introduced or coined the term physiology. Now, the first modern physiology, the credit of being the first modern physiologist goes to William Harvey. Okay, William Harvey was a 17th century physiologist. He wasn't basically a physiologist because in earlier time people were all-rounder. They were philosopher, they were priest, they were doctor, they were everything. So in earlier time, the subject was not so compartmentalized that physiology is a completely different thing and this is completely different thing. So earlier people, they were all-rounder. So William Harvey was a physician and also a researcher or a physiologist, we can say, and he described the circulatory system. Earlier people thought that blood flowed inside the body freely, openly, not inside a vessel. They thought that blood is flowing inside the body and it's an open circulatory system. Blood is not contained inside any artery or vessel. But William Harvey, he first described the circulatory system and showed the world that blood inside your body flows in a closed chamber or tube, which are known as the arteries or veins. Since the microscope wasn't discovered or invented at that time in the 17th century, so he was not able to see the red blood cells or the microscopic particles of the blood. He wasn't able to see the capillaries. कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं ठीक है arteries arterioles and capillaries and venules and veins so he was not able to describe or see the capillaries so he described the circulatory system but he wasn't sure how the blood moves from the artery to veins he was able to visualize the veins he was able to visualize the arteries but he wasn't able to visualize the capillaries because capillaries they are microscopic many capillaries and microscope wasn't invented at his time
Later on, Anton van Leeuwenhoek, he invented the microscope, and then it was realized that capillaries, they connect veins, arteries to veins. Okay. Now, two people, they are very closely related to modern physiology. If you have any problem or anything, you can share it on the chat. Okay. Don't unmute yourself. If you have any query, you can share it on the chat and your query will be answered. Okay. So the father of modern physiology is a French physiologist known as Claude Bernard, and he gave the concept of milieu interior. Milieu means constant, and interior means, you know, the internal of a body. And his milieu interior concept was later on refined by Walter Bradford Cannon in 1929, who gave the term homeostasis. होम्योस्टेसिस मीन्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, जो आपकी बॉडी में जैसी चीजें हैं वैसी मेंटेन रहती है. पीएच जैसे आपके बॉडी का एक फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है, वाटर एंड फ्लूइड बैलेंस आपके बॉडी का फिक्स होता है. इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, एक फिक्स इंटरनल एनवायरनमेंट. ओके, सो दिस इज नाउ द आंसर टू योर क्वेरीज के सर किताबें कौन सी पढ़नी है. तो किताबें ये पढ़नी है आपको. मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ये सभी किताबें, चारों किताबें नहीं पढ़नी है आपको. ये डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में फिजियोलॉजी की. पहली दो किताबें जो हैं, दे आर द बेस्ट वन. ठीक है, गाइटन आपको पढ़नी है. द फर्स्ट बुक इज गाइटन एंड हॉल, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी. ये आपको पढ़नी है. दिस इज द एसेंशियल बुक दैट यू have to buy and have to study. ठीक है, उसके बाद आती है Ganong रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी. Ganong इज अ बिट एडवांस्ड बुक. अगर आपने गाइटन पढ़ लिया या गाइटन से थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर Ganong. लेकिन Ganong अकेले नहीं पढ़ सकते आप, आपको गाइटन पढ़नी है. यू नीड टू स्टडी गाइटन. ठीक है, एंड यू कैन एडवांस ओवर गाइटन टू Ganong, बट Ganong इज just a review of medical physiology. It's not a textbook of medical physiology. So mind it, Ganong is not your complete textbook. You have to buy Guyton and Hall, the first book that is visible here on this slide. Guyton and Hall, textbook of medical physiology. Okay, you buy it. That is your main book. Third or the second edition of Guyton? Of course, third edition with the newest edition. से सेकेंड एडिशन, ये जब मैंने स्लाइड बनाई थी शायद तो ये 6-7 महीने पहले, जब भी, तो ये सेकेंड एडिशन का शायद मुझे मिला होगा. ऑफ कोर्स यू हैव टू बाय द लेटेस्ट एडिशन. लेटेस्ट एडिशन जो भी है, ये साउथ ईस्ट एशियन एडिशन का शायद थर्ड एडिशन है, और गाइडन की इंटरनेशनल एडिशंस भी आती हैं, वो शायद 13th एडिशन चल रही है इंटरनेशनल एडिशन की. लेकिन इंटरनेशनल एडिशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है. कंटेंट इज द सेम, बट इट्स अ बिट कॉस्टलियर क्योंकि उसके पेज थोड़े ग्लॉसी होते हैं और हार्ड बाइंडिंग होती है. यू डोंट नीड दैट. ठीक है, उसके अलावा आप इंडियन ऑथर की एक बुक आती है, ए.के. जैन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी. ठीक है, दे हैव यूज्ड अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. गाइटन बेस्ड ही है ये बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी. जो थर्ड बुक आप देख रहे हैं लिस्ट में, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी बाय ए.के. जैन. दिस इज a mixture of, you can say, Guyton and Ganong, basically based on Ganong and written in a very simple word. Okay, Guyton और Ganong ये फॉरेन ऑथर्स की बुक है, तो Ganong का लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इंग्लिश, Guyton का तो सिंपल है. और ये ए.के. जैन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी से और फर्दर सिंपल कर दी गई है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई बुक है ये. तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन गाइटन मस्ट है. गाइटन ले लें. उसके अलावा आप चाहे Ganong ले लें, चाहे ए.के. जैन ले लें. जी.के. पाल हैं, उनकी भी एक बुक आती है जो यहाँ पे फोर्थ बुक है. सो यू हैव टू बाय गाइटन एंड देयर आफ्टर यू कैन बाय एनी अदर बुक. गाइटन इज अ मस्ट. क्लियर? एम आई क्लियर? सो आई एम मूविंग दिस स्लाइड नाउ. अब तो किसी को क्वेश्चन नहीं है ना बुक कौन सी लेनी है. कल भी बताई थी वैसे ये बात प्रैक्टिकल के दौरान
कि बुक कौन सी लेनी है आप लोगों को, बट वो मेरे सिर्फ ह्यूमन लैब वाले बच्चे थे 50, तो शायद सबको नहीं पता चली होगी ये बात. Anyway, so these are the books that you need to buy. And this is the practical manual that you cannot buy right now. ये जब आप डिपार्टमेंट आएंगे तो आपको डिपार्टमेंट से ये मैनुअल दी जाएगी. द फर्स्ट वन अभी जो आप बाई कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल, एके जैन की मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी आती है. डोंट लुक एट द एडिशन कि 5th एडिशन लेनी है सर. जो अभी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल होगी, शायद 6th एडिशन आ गई है. लेट मी सी, आई हैव इट. मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी 5th एडिशन. मे बी हो सकता है 6th एडिशन ना आई हो, 5th ही आई हो. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि अभी कौन सी एडिशन चल रही है, पर जो भी लेटेस्ट एडिशन हो आप ये ले लें. मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी बाय के जैन. उसमें आप लोगों को उन एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल दिए हैं जो आपको करने हैं. ठीक है. और जब आप यहाँ आएंगे कॉलेज में तो फर्स्ट बुक जो यहाँ बनी हुई है मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, वो आप लोगों को मिलेगा. वो प्रिटी बेसिकली उसमें कुछ आप इसमें लिखिए कि क्या प्रैक्टिकल बाय द टीचर. तो इसमें प्रैक्टिकल्स की के बाद जो मैनुअल मिलेगी, जो फर्स्ट वन यहाँ फोटोग्राफ है फर्स्ट पे. ठीक है. डिटेल आपको प्रैक्टिकल की अगर पढ़नी है तो यू नीड टू बाय अ प्रैक्टिकल बुक. एंड जो सब अच्छी है वो मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी फॉर एमबीबीएस डॉक्टर ए.के. जैन की. क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू अ मेन टॉपिक. बहुत इधर उधर की बातें होगी. Introduction to blood. Today we will be talking about the blood and our learning objectives. कि at the end of the session हम क्या जानेंगे. So we will describe the function of the blood. We will describe the composition of the blood, and we will understand the difference between plasma and serum. बहुत लोगों को पता होगा ये कि plasma और serum का difference क्या होता है, but जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. So these are our learning objectives that we need to fulfill during our session today. So coming to introduction of the blood. Now blood is the only fluid tissue inside the human body. Okay. Tissues are aggregates of cells. Cells मिलके टिश्यू बनाते हैं और वो एक टिश्यू एक फंक्शन करता है. ठीक है. इंडिविजुअल सेल वो फंक्शन नहीं कर पाते जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके करते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं. तो blood is the only fluid tissue in the body. ठीक है. fluid tissue and is circulated with the help of blood vessel. It is pumped by the heart and then it is circulated through blood vessel to each and every part of the body. ठीक है. so blood comes in contact with each part of your body. एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी के हर पार्ट के कांटेक्ट में रहता है. ठीक है. इंटरैक्ट विद इंडिविजुअल सेल्स. हर सेल बॉडी के हर पार्ट नहीं, हर सेल के कांटेक्ट में रहता है. ठीक है. एक ऐसी चीज है ब्लड जो बॉडी के हर सेल के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करता है. सो ब्लड इज दैट मीडियम और दैट टिश्यू दैट इज इन कांटेक्ट विद ईच एंड इंडिविजुअल सेल ऑफ योर बॉडी. कमिंग टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल मतलब जो ऑब्वियस है उसके फीचर्स, जो देखने में उसके फीचर्स आते हैं उसको कहते हैं हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड में सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम की हम बात करते हैं. सो ब्लड वॉल्यूम अकाउंट्स टू और द 6 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. ठीक है. ऑलमोस्ट 8%, 6 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज ब्लड. Suppose you are 70 kg person, so 6 to 8 का मतलब होता है कि 4.2 लीटर से 5.6 लीटर ब्लड. तो तकरीबन यही होता है. एवरेज ब्लड वॉल्यूम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज 5 to 6 लीटर इन मेन एंड 4.5 to 5.5 लीटर इन मेन. ये वुमेन. ये डिफरेंस ये है कि मेन दे आर प्रिटी मोर मस्कुलर. मेन में जो मसल मास होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज अ वुमेन. ठीक है. एज compared to a woman, men's they normally have
more muscle mass. Men, they have more muscle mass as compared to more muscle mass means more oxygen requirement. So normally the amount of blood in men is more as compared to that in women. Okay. Plus, men, they have hormone testosterone, and testosterone helps in the production of blood. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का ये इफेक्ट है, वो थोड़ा ब्लड प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है. So men, they have slightly more amount of blood as compared to women. pH of the blood ranges from 7.35 to 7.45. pH क्या होता है बताओ? What is pH? बीच बीच में ऐसे डिस्कशन, ऐसी बातें होती रही थी, सिर्फ मैं नहीं बोलता रहूंगा लगातार. तो अब आपके बोलने की बारी है. पीएच क्या होता है बताइए, जल्दी चैट में लिख के बताइए. ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दिया, सबने सही लिखा ऑलमोस्ट. पीएच इज पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, और बेसिकली इट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ सही लिखा है किसी ने. सो बेसिकली पीएच इज अ स्केल. ठीक है, a scale that measures the acidity or basicity of a substance, and it basically measures the concentration of hydrogen ion, or P stands for power or potency of hydrogen ion. Okay, so it's a logarithmic scale that tells you about the basicity or acidity of a medium. 7 is considered neutral, and above 7 we have an alkaline or basic medium, and below 7 we have an acidic medium. So the pH of your blood is 7.35 to 7.45. Is it acidic or basic? क्या है? Blood आपका acidic है या basic है? Basic, right? Because above 7 is basic, and it is just above 7, so you can say slightly basic. Good. Now coming to color of the blood, लाल होता है रंग, सबको पता है. But there is a slight difference between venous blood and arterial blood. Okay, arterial blood is an oxygen-rich blood. जो blood artery में होती है उसमें oxygen ज़्यादा होता है. So oxygen-rich blood is bright red in color, or you can say scarlet red. Whereas oxygen-poor blood, the blood that is running inside the vein, they are dull red. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कलर में, बस आर्टरीज की थोड़ी ब्राइट रेड होती है और जो वेन्स में होते हैं वो थोड़े डल रेड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लड. नाउ एनीवे, इन योर medicine textbook or medicine session or in any article, if you find the prefix hemo or hemato, that refers to blood. ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको एक प्रीफिक्स लिखी मिली हो हीमो या हिमैटो, इनके स्पेलिंग्स भी थोड़े स्लाइटली डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूके और यूएस इंग्लिश. ठीक है, एक जगह हीमो लिखा होता है सिर्फ ई से, एक जगह एच ए ई होता है. तो दिस इज जस्ट यूएस एंड यूके इंग्लिश डिफरेंस. सो एनीवे, जहां भी आपको हीमो या हिमैटो लिखा हुआ मिलेगा, दैट प्रीफिक्स रेफर्स टू ब्लड. ठीक है, दिस हीमो और हिमैटो इज derived from Greek word hyma. So this prefix, anyway, जैसे कि example hemoglobin. ठीक है, so hemoglobin, hemo refers to the blood part. Globin is a protein, so the protein. ठीक है, तो कहीं भी आपको अगर हीमो मिले, that refers to blood. Okay, now coming to our first learning objective, के function of blood. Blood का काम क्या है? सबको, आप लोगों को पता होगा blood का काम क्या है. Majority of people will be knowing कि blood का काम क्या है. ठीक है, but let's discuss. हो सकता है इतनी डिटेल में ना पता हो, और डिटेल हम बाद में जाएंगे. अभी तो जस्ट सिर्फ आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है. So function of the blood, first and foremost function is transport. Okay.
transport of the gases, that is oxygen and carbon dioxide. Oxygen lung से through heart में जाता है, and then from the heart through blood obviously, and then from the heart the blood carries the oxygen to each and every cell of the body. And then from the cells the blood pick up the carbon dioxide and then it bring back the carbon dioxide to the heart, and from the heart that carbon dioxide goes is exhaled out. So one of the most important function of the blood is transport function. और सिर्फ गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सॉरी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, जैसे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो आजकल आप लोग सबने सुन रखा होगा, पहले कितने लोगों को नहीं पता थी कि एंटीबॉडी क्या होती है, लेकिन अब कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। ये पहले हम पढ़ाते थे कि एंटीजन क्या होता है बेटा, एंटीजन की ये डिफिनीशन है, ये होती है एंटीजन और ये होता है एंटीबॉडी। पर अब मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुन रखा होगा या समझ रखा होगा कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, तो लेटर ऑन हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी इसमें, जो आप लोगों को पहले से ही पता है कि एंटीबॉडी क्या होती है। खैर, तो एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, दे प्रिवेंट और प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। तो एंटीबॉडीज, आयंस, विटामिन्स, हार्मोन, न्यूट्रिएंट, ये सब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ कहीं और, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस हुआ या पैंक्रियाज में प्रोड्यूस हुआ, ठीक, कहीं भी प्रोड्यूस हुआ हार्मोन। हार्मोन का एक डिफिनीशन ये है कि सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड एट समवेयर एल्स एंड दे एक्ट एट समवेयर एल्स, मतलब जहां प्रोडक्शन होता है वहां पर नहीं, कहीं दूर जगह जाके एक्ट करते हैं। तो दूर जगह हार्मोन पहुंचते कैसे हैं? थ्रू द ब्लड, ठीक है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड एट समवेयर एल्स but their action is at a different part of the body. So hormones plus आप जो nutrients जो आपके बॉडी में आती है through the food, ठीक है, वो vitamins, minerals, proteins, ये सारे सेल्स को चाहिए to grow, मसल सेल्स को चाहिए प्रोटीन इनको ग्रो करने के लिए। तो ये सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स ये मसल तक, सेल तक पहुंचाएगा कौन? ब्लड। So this is the function of the blood, transport function, okay. Coming to second most important function, immunity, ठीक है। स्लाइड सबके सामने विजिबल है ना, चेंज हो रही है? कुछ बच्चों की कल परेशानी थी कि सर वो स्लाइड नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। सो एवरीवन इज एबल टू व्यू द स्लाइड, गुड, ओके। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव या प्रोटेक्शन, कि आप अगर किसी चीज से इम्यून है तो मतलब आप उस चीज से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर हम बॉडी की इम्यूनिटी की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इन्वेडिंग पैथोजन और इन्फेक्शन, कोई भी पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, उससे प्रोटेक्शन। तो ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस एंड डिजीज। ये काम होता है वाइट ब्लड सेल का। द ल्यूकोसाइट्स ऑफ योर ब्लड, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स लेटर ऑन, ओके, इन डिटेल फैशन। देन हीमोस्टेसिस, ब्लड का एक काम है हीमोस्टेसिस भी। अभी थोड़ी देर पहले सेकेंड या थर्ड स्लाइड में हमने एक टर्म पढ़ा था, होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज होम्योस्टेसिस विथ हीमोस्टेसिस, ठीक है। हीमो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हीमो वर्ड जहां भी रहेगा, हीमो का मतलब होता है ब्लड। सो हीमोस्टेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम होम्योस्टेसिस। Homeo refers to constant environment and hemo refers to blood. So hemostasis means, stasis means stoppage and hemo refers to blood. So hemostasis means stoppage of blood or stoppage of bleeding, ठीक है। hemostasis का मतलब होता है bleeding का stop होना। तो blood का ये भी एक important function है कि if there is an injury and there is bleeding, so the blood will try to stop its own flow, stop its own bleeding by coagulation process or clotting mechanism,
ठीक है, क्योंकि अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो फिर तो ट्रिवियल इंजरी में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा ना, तो ब्लड का ये फंक्शन है कि वो क्लॉटिंग करवाती है, तो कभी जब ब्लड फ्लो होता है आपकी बॉडी से बाहर, नॉट इनसाइड द वेसल, जाती है और ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर, तो उस ब्लड को रोकना है ज्यादा एक्सेसिव लॉस, एक्सेसिव फ्लो होने से। ये भी ब्लड का फंक्शन है, इट कॉजेज प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस और एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, इसे कहते हैं हीमोस्टेसिस। ओके, नाउ द वर्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, होम्योस्टेसिस, coined by Walter Bradford Cannon, the term homeostasis. Now, what is homeostasis? Maintenance of constant internal body environment. Blood also plays a role in the maintenance of constant internal body environment. आपके बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट उसे कांस्टेंट रखता है ब्लड। ब्लड क्या चीजें करता है? ब्लड पीएच मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में के वॉल्यूम कितना है, फ्लूइड कितने हैं, ओस्मोलैलिटी एंड बॉडी टेम्परेचर, इनको रेगुलेट करता है। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है, हालांकि आजकल तो होमवर्क क्लास वर्क सब आपका होम से ही चल रहा है, क्लास में आ नहीं रहे हैं, तो आई डोंट नो वेदर टू से इट एज क्लास वर्क और से इट एज द होमवर्क, बट स्टिल देयर इज अ होमवर्क फॉर यू कि you need to find the difference between osmolality and osmolarity। ये नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, इसीलिए इसे होमवर्क मान सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, you got the question? You need to find difference, sorry difference की स्पेलिंग में बीच में दिया गया, so sorry for that। So you need to find the difference and osmolarity, ठीक है। Osmolarity और osmolarity में डिफरेंस। So blood regulates your body fluid osmolarity and regulates the body temperature। ठीक है, टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है ब्लड? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, यानी ठंड में हो, तो द ब्लड फ्लो टू द स्किन से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, तो ब्लड डज नॉट कम्स इन कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड इन समर्स में जब बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो टू द स्किन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, एंड द ब्लड लूजेस योर बॉडी हीट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपके, क्योंकि अंदर से जो बॉडी का टेम्परेचर है अगर हॉट है तो ब्लड भी हॉट होगा, तो ब्लड वो टेम्परेचर, वो हॉटनेस लेके आपके स्किन तक आता है, एंड देन इट डिसिपेट्स द हीट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो बाहर के टेम्परेचर पे हीट डिसिपेट कर देता है, प्लस स्किन पे स्वेटिंग होती है, स्वेट इट टेक्स अप द हीट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, एंड देन द कोल्ड ब्लड मूव ऑन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज हाउ ब्लड मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर। पीएच कैसे मेंटेन करता है ब्लड? ब्लड में कुछ केमिकल्स होते हैं जो बफर्स कहलाते हैं, एंड बफर्स आर द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट एनी चेंज इन द पीएच, दैट मेंटेन्स पीएच। अब जो समझने का इट्स लाइक मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, या इट्स लाइक दैट, बट अभी आंसर नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्लास वर्क नहीं है। क्लास वर्क में क्लास में आंसर करना होता है, क्लास वर्क नहीं है, होमवर्क है।
होम में इससे सॉर्ट आउट कीजिए और फिर अगले क्लास में हम पूछा जाएगा, ठीक है? You are right, it's like molarity and molarity, Abdul Samad, but in the next class you will be given a chance to say or speak about it. ठीक है, हो सकता है मैं आपको बोलूं किसी को भी कि now unmute yourself and tell the answer. ठीक है, so blood is having substances which are known as buffers, and buffers they maintain pH. Okay, most one of the common buffer is hemoglobin. Hemoglobin जो oxygen carrying pigment होता है वो एक important buffer है. ठीक है, now coming to composition of the blood के parts क्या क्या होते हैं? So broadly दो पार्ट होते हैं ब्लड के. द लिक्विड पार्ट जो आप लोगों को दिखता है, यानी ब्लड जब आप देखते हैं तो लिक्विड सा दिखता है ना, पानी की तरफ फ्लो करता हुआ. तो द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज द प्लाज्मा, एंड देन द सेलुलर पार्ट जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, जो यूजुअली आपको नेकेड आई से दिखते नहीं है. आपको ब्लड लिक्विड जैसे ही दिखता है, लेकिन ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, so blood is basically an incredibly complex cocktail of various cells, proteins. ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, incredibly complex cocktail है. ठीक है, मिक्सचर है बहुत, एंड इट्स अ लिविंग थिंग. आपको ब्लड ऐसे देखोगे तो लगेगा फ्लूइड जैसा, पर ब्लड इज अ लिविंग थिंग एंड इट इज incredibly complex fluid. ठीक है, consisting of many proteins, cells and perfectly engineered to perform its function. ठीक है, so basically दो पार्ट होते हैं ब्लड के. द लिक्विड पार्ट इज प्लाज्मा, जो 55% ऑफ द ब्लड होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट और सेल्स होते हैं लाइक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स व्हिच कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड. ठीक है, तो ये सेल्स जो होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, they are suspended inside the plasma. Plasma is the fluid part. So this is a microscopic appearance of a blood. अगर ब्लड को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ऐसा दिखेगा आपको. ये जो डिस्क शेप्ड है ये एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसी है. जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो प्लाज्मा है, वो है. छोटे से आपको प्लेटलेट साइड डब्ल्यूबीसी दिखेगी. ठीक है, ये तो अल्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है ये फीचर. नॉर्मल आप माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में इतना डिटेल नहीं दिखेगा. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ अ ब्लड है, ये स्लाइड जो दिख रही है. नॉर्मल वाला भी अभी आपको दिखाते हैं. ठीक है, नाउ in the previous slide I told that 55% of the blood is the fluid part, which is known as plasma, and 45% is the cellular component consisting of RBC, WBC and platelets. ठीक है, now how you can confirm it कि वाकई 55% प्लाज्मा होता है और 45% आरबीसी वगैरह सेलुलर एलिमेंट होते हैं. ठीक है, आपको तो ब्लड पूरा रेड दिखता है, फ्लूइड दिखता है. अब उसमें आप अगर कहना चाहेंगे कि 55% 45% सेल है, 55% फ्लूइड है, उसे कंफर्म कैसे करोगे? तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसे हम, जो आपके स्लाइड पे दिख रही है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं. टेक अ नोन अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी 10 ml ब्लड आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लें. ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ ब्लड, जो आपको पता है कितना ब्लड हमने लिया है. ठीक है, उसे एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और फिर टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करें. सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है रोटेटिंग एट वेरी हाई स्पीड. ठीक है, 3000 to 5000 आरपीएम. आरपीएम इज रोटेशन पर मिनट. तो एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, वो बहुत हाई स्पीड में घूमती है. उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे यहाँ आप स्लाइड में बीच में देख रहे हैं, उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, होल्स बने होते हैं, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब फंसा सकते हैं. और फिर वो मशीन बहुत हाई स्पीड में घूमती है, 3000 to 5000 रोटेशंस पर मिनट. ठीक है, तो आप 3000 to 5000 आरपीएम पे 5 मिनट तक रोटेट कीजिए ब्लड को. 5 मिनट के बाद जब आप टेस्ट ट्यूब निकालेंगे अंदर से, तो आपको ब्लड वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने डाला था टेस्ट ट्यूब में. अब ब्लड में दो कलर आ चुका होगा.
एक ऊपर का पार्ट जो येलो कलर का होगा, एक नीचे का पार्ट जो रेड और हल्का सा व्हाइट एक बीच में लेयर होगा। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली 3 कलर में बढ़ चुका होगा ब्लड। जो ऊपर का पार्ट है, येलो कलर का पार्ट, क्लियर पार्ट, वो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, वो प्लाज्मा है। ठीक है, नाउ यू कैन मेजर इट कि वो 55% ऑफ द टोटल फ्लूइड होगा वो प्लाज्मा। आप अगर लेंथ से देख लेंगे तो वो 55% ऑफ द टोटल लेंथ होगा ब्लड के टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो क्योंकि आप जब हाई स्पीड में रोटेट करवाते हैं ना, तो जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फ्लूइड पार्ट, दे आर डेंसर, सो दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और जो फ्लूइड पार्ट है, लाइटर पार्ट, इट गोज अप। तो आपको 3 कलर्स दिख जाएंगे। द येलो पार्ट वुड बी द प्लाज्मा, and there will be a slight white layer that consists of leukocyte and platelet, and then you have the red layer of WBC, RBC, sorry. So this is how you can confirm जो बात कही गई कि प्लाज्मा 55% होते हैं और सेल्स 45% होते हैं। ठीक है, ये तो आपको फोटोग्राफ में दिखाया। एक्चुअली जब आप ब्लड को फ्लूइड में लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग, आप तो नहीं करेंगे, या आप भी इस प्रोजेक्ट के तहत अगर करना चाहें तो कर सकते हैं लेटर ऑन। पर हमारे लेवल पे या फिर हायर एड स्टडीज लेवल्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें प्लाज्मा चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जब चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे? इसी टेक्निक से निकालते हैं। सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को और उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेटल डाउन कर जाता है और ऊपर आपको प्लाज्मा मिल जाता है। ठीक है, अभी जैसे मोस्ट कॉमनली आपने कोरोना में सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट करना है, प्लाज्मा डोनेट करना है। तो खैर वहां तो बड़े लेवल पे करते हैं, तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब पे रख के घुमाते नहीं है। उनकी एक अलग मशीन होती है कि ह्यूमन ब्लड उस मशीन में जाता है, लेकिन फंक्शन वही होता है, उसे फ्रैक्शनेट कर देते हैं घुमा के और वहां से प्लाज्मा निकल जाता है। कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए करते हैं जहां हमें बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखेगा टेस्ट ट्यूब। जब आप टेस्ट ट्यूब में ब्लड रख के उसे रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट, तो ज्यादातर में वो प्लाज्मा में ही टेस्ट होता है। तो उसमें आपके ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। इस तरह के टेस्ट ट्यूब में आप किसी से लाल पैथ या किसी भी पैथोलॉजी वाले को कहेंगे तो वो आके आपका ब्लड लेगा और इस तरह के टेस्ट ट्यूब में रखेगा। तो फिर उसमें टेस्ट ट्यूब को वो रोटेट करके उसमें से प्लाज्मा निकाल के टेस्ट जो है वो प्लाज्मा में लगता है। इसी तरह का प्लाज्मा होता है। क्लियर? बोलो, कुछ तो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? इतने सन्नाटे में क्लास लेने की आदत नहीं है ना, तो पूरे भरे हुए लेक्चर थिएटर में क्लास लेते हैं, बच्चे बोलते रहते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ मैं बोले जा रहा हूँ अकेले, मुझे रिस्पॉन्स तो दो। चलो ठीक है, ओके, गुड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, प्लाज्मा वर्सेस सीरम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? चलो बताओ, ये आप लोगों का क्लास वर्क हो गया। बताओ, लिख के बताओ, प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है, किसे पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? जल्दी करो, टाइम नहीं है ज्यादा, एनाटमी वाले आ जाएंगे फिर क्लास लेने। गुड, सही कहा सबने। सो प्लाज्मा माइनस clotting factor or fibrinogen. Fibrinogen is the most common clotting factor present in the blood. So plasma minus fibrinogen is the serum. ठीक है, प्लाज्मा अगर आपने ब्लड को क्लॉट होने दे दिया, ब्लड क्लॉट कर गया, फिर उसे आपने हाई स्पीड रोटेशन किया, तो जो फ्लूइड पार्ट मिलेगा वो सीरम होगा। और अगर ब्लड में आपने एंटीकोगुलेंट डाल दिया, मतलब जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो जो क्लियर फ्लूइड मिलेगा वो आपको प्लाज्मा मिलेगा। सो प्लाज्मा इज फ्लूइड विद द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड सीरम इज द फ्लूइड पार्ट विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। बस यही डिफरेंस है कि क्लॉटेड ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो क्लियर फ्लूइड मिलेगा वो सीरम होगा। ठीक है, सबने सही जवाब दिया। इसका मतलब आप लोग सबको पहले से ही पता है, तो अच्छी बात है ये। ठीक है, सो प्लाज्मा वर्सेस सीरम में यही डिफरेंस है
कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम. नाउ कमिंग टू ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा की कंपोजिशन बता देते हैं. सो 90% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, बेसिकली 91%. ठीक है, जो प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है उसका 91% वाटर होता है, दैट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर अदर थिंग्स. 7% तकरीबन प्रोटीन्स होते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. माइंड इट, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो 91% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड 7% is the protein which are known as plasma proteins, and the rest are hormones, nutrients, salt, dissolved substances. ठीक है, बहुत सारे substances जो blood में dissolve होके जाते हैं वो plasma में ही dissolve होते हैं. तो plasma is the fluid part. So 91.5% of the plasma is water, and that water acts as a solvent for the substance to dissolve in it. 7% होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें आता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. सो ये प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, इन सब का बहुत रोल है बॉडी में. ठीक है, ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे क्या रोल है. आज नहीं, आज बस सिर्फ कंपोजिशन पढ़ेंगे कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है. ठीक है, उसके अलावा वाटर और प्रोटीन के अलावा फिर कई सारे सॉल्यूट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. दे ऑल आर देयर इन द प्लाज्मा. देन दे आर गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स. ओके, उसके बाद ब्लड का दूसरा कंपोनेंट हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी सेल्स. सो यू हैव द एरिथ्रोसाइट और द रेड ब्लड सेल, you have the leukocyte or the white blood cell, and then you have the platelets. So these are the cellular part of the blood. ठीक है, so this is how you can say that is the composition of the blood. Blood forms 8% of your body weight. Sorry, ठीक है, 8% of your body weight is blood. यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये 8% ऑफ द बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट आपका जितना है उसका 8% ब्लड होगा. ठीक है, उस टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होगा और 45% सेलुलर कंपोनेंट होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा में मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, 91.5%. 7% is protein, that is albumin, globulin, fibrinogen, the main proteins. And 1.5% are other solutes like gases, substance dissolved in plasma. In the blood cells, you have the platelets, you have the white blood cells, and you have the red blood cells. White blood cells भी कई तरह के होते हैं, neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil. So this is the whole composition of the human blood. ठीक है, अब जो बात कर रहा था मैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में अगर आप ब्लड को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा दिखेगा. पिछली पिक्चर्स जो दिखाई थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी. दिस इज, और ये पिक्चर आप लोग हेमेटोलॉजी लैब में देखेंगे जब आएंगे तब. ये आप लोगों को करना भी है. वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ योर हेमेटोलॉजी लैब इज टू मेक योर ओन ब्लड फ्लेम. ओन पे ज्यादा एम्फेसिस है यहाँ पे, ओन, अपना खून निकालना है. तो कई लोग खून निकालते हुए गिर भी जाते हैं, हर साल 2-3 लोग गिर जाते हैं खून निकालते ही साथ, खून देख के बेहोश. तो इसीलिए जब आप हेमेटोलॉजी लैब में आए तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, अपने ब्लड की स्लाइड बनानी होगी, फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखना होगा. तो जब आप वो स्लाइड बना के देखेंगे तो जो आपको दिखेगा पिक्चर वो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, रेड कलर की स्मॉल डिस्क दिखेंगी जो एरिथ्रोसाइट्स होंगी, और पर्पल कलर के बहुत सारे सेल्स होंगे जो व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स होंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, कोई इसिनोफिल होगा, कोई न्यूट्रोफिल होगा, कोई बेसोफिल होगा, कोई लिम्फोसाइट होगा, कोई मोनोसाइट होगा. इन स्लाइड, ये ऐसी स्लाइड है जिसमें मैंने सब तरह के सेल्स दिखा दिया आपको, सब तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स. लेकिन आपको नॉर्मली शायद ऐसा देखने को ना मिले कि किसी एक ही फील्ड में आपको हर तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स दिख जाए. आपको हो सकता है कोई एक तरह का सेल ना दिखे, मोनोसाइट ना दिखे, बेसोफिल ना दिखे उस फील्ड में. ठीक है, now coming to your last topic for today is artificial blood. Artificial blood क्या होता है? Substance that are able to mimic certain function of the blood. ठीक है, अभी तक कोई ऐसा सब्सटेंस हमें मिल नहीं पाया
या हम बना नहीं पाए जो ब्लड के सारे फंक्शन को कैरी आउट कर सके। जितने फंक्शंस ब्लड के बताए हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो ब्लड के सभी फंक्शंस को पूरा कर सके। तो कुछ सब्सटेंस हमने बनाए हैं जो पार्ट पार्ट फंक्शन पूरा करती है। कोई कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज बना पाते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंस हैं जो ब्लड के अलग अलग फंक्शंस कर पाते हैं। तो यही आर्टिफिशियल ब्लड। रिसर्च इज गोइंग ऑन टू फाइंड अ सब्सटेंस दैट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो इससे कई सारी आसानियां हो जाएंगी। जैसे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में कई बहुत सारा रिस्क है, डिजीज ट्रांसफर का रिस्क है कि ब्लड से कहीं डिजीज ना चली जाए। ठीक है, तो मिस मैचिंग का रिस्क है कि मिसमैच हो सकता है, ब्लड रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल ब्लड डेवलप कर लें तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आ पाएंगे। पर अभी तक कोई ऐसी सक्सेस हमें मिली नहीं है। दो तरह के सब्सटेंस बेसिकली आज हमारे पास हैं। एक कहलाती है हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर्स, HbOCs, और एक होता है परफ्लोरोकार्बन्स। पर इन दोनों सब्सटेंस का मेन रोल बस ऑक्सीजन कैरी करने का ही हो पाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी, क्लॉटिंग, ये सब ये लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो हमारे पास फिलहाल जो आर्टिफिशियल ब्लड है उसका पर्पस सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करना है और कुछ नहीं। ठीक है। एक कम्युनिटी होती है, उसका नाम है जेहोवाज विटनेस। किसी ने सुना है ना, जेहोवाज विटनेस? किसी ने नहीं सुना होगा शायद, ये सुना है या अभी सुन रहे हैं सब गूगल करके? हो जाए भी हो जाए, एग्जैक्टली मुझे भी याद है, बट देयर इज अ कम्युनिटी नोन जेहोवाज विटनेस। नाउ आर्टिफिशियल ब्लड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेहोवाज विटनेस इज अ सेक्ट इनसाइड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है। इनके लिए एज पर देयर religious scripture, they follow Bible only. Bible ही है उनका religious scripture, but a modified Bible. Perhaps they have modified it to some extent. So as per the religious scripture, blood transfusion is not allowed. ब्लड, किसी दूसरे इंसान का ब्लड आप अपने बॉडी में नहीं ले सकते, ये इनको अलाउड नहीं है। जेहोवाज विटनेस के जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से यू कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। तो इनके लिए आर्टिफिशियल ब्लड बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। क्योंकि या अगर आपने जेहोवाज विटनेस में है, अगर आपने किसी दूसरे इंसान से ब्लड ले लिया, यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द रिलीजन, दिस जेहोवा, आप जेहोवा नहीं रहे। ठीक है। सो when I was looking about artificial blood, when I was looking the literature, searching the literature, this news came to me about Jehovah's Witness। तो मुझे भी पहले नहीं पता थी, तो हो सकता है आप लोगों को भी ना पता हो। कोई ऐसी बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है ये जेहोवाज विटनेस की। तो आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इनके बारे में पता चला। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next class, we'll be talking about plasma proteins in detail, and that would be on Friday. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई परेशानी हो आप लोगों को तो माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर, आप लोगों के पास होगा ही नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, कोई भी मैसेज, कोई भी परेशानी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। So that's it for today. Thank you. Have a good day. चलो अब अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। एनाटॉमी वाले आ जाएंगे, मेरे ख्याल से एनाटॉमी की क्लास है। उससे पहले 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, नाश्ता चाहो तो कर लो। ज्यादा देर का बचे ना, एनाटॉमी वाले परेशान हो जाओ।